गुड मॉर्निंग, इट्स डे 2 और कल रात लगभग 9:30 बजे मैं पहुंचा किलर और तब तक सभी होटल होम स्टे सब कुछ बंद हो चुकी थी, तो एंटायर किलर वाज सुनसान। तो फाइनली मुझे जाके ये चंद्रभागा गेस्ट हाउस में कैसे भी करके एक रूम मिल गया। आई वाज लकी इनफ टू गेट अ रूम ओवर हियर, तो आई स्पेंड अराउंड 500 फॉर दिस रूम। तो रूम बहुत बढ़िया कुछ था, ऐसा नहीं बोलूँगा, बट एक रहने लायक रूम था। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट गेस्ट हाउस और होम स्टे ओवर हियर। सो इफ़ यू कम हियर यू मे ट्राई योर लक ओवर हियर। एंड नाउ अभी मैं सच पास के लिए निकल रहा हूँ और यहाँ से मुझे पेट्रोल भी मिल गया क्यों, तो मैंने टैंकी अपना फुल करा ली। सो पेट्रोल का किराया थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे नॉर्मल पेट्रोल पंप से, तो मुझे 100 रुपये पर लीटर करके पेट्रोल लेना पड़ा, पर इट्स ओके क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं है और पेट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे सुनसान जगह पे। Welcome back, guys. This is the second part of my journey to Sach Pass, the most dangerous road in the world. The link of the first part is coming in the top right corner and can also be found in the description box. Now, first things first, let me quickly go back to yesterday evening and explain how did I manage to reach Killar after it got completely dark and I was stuck near a big nala. मैं ऑलरेडी एक बार बाइक लेके दूसरा एक नाला में गिर चुका था एंड मेरे शूज़ पूरे गीले हो चुके थे, सो इस बार मुझे और चांस नहीं लेना था, वो भी इतने अंधेरे में। फाइनली आई मैनेज टू डिस्कवर ए स्मॉल अल्ट्रा नैरो ब्रिज which would allow you to bypass the nala somehow. You will be able to understand the challenge that I had to face when you would actually see the nala and the bridge in daylight. Towards the end of this video, when I would return back to Manali by the same route. Now, apart from this, the route was so dark that the brightest object I could find were the stars above my head. अंधेरे में मैं तो 2 बार गलत रास्ता भी ले लिया था। एंड सबसे टेंशन की बात ये था कि मुझे आगे का 20 से 30 मीटर तक ही दिखाई दे रहा था हेडलाइट की रोशनी में। So I had to be super careful and move really slow with the fear in my head of falling down thousands of feet. Follow the link from the description or I button on the top right corner to watch the full video of my night journey experience. किलर से सच पास लगभग 40 किलोमीटर का रास्ता है एंड यहाँ के लोकल लोगों के बातों से पता चला पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कल का रास्ता बस ट्रेलर था, लेकिन आफ्टर कवरिंग 80 किलोमीटर्स ऑफ ऑफ रोड इन द डार्क आई फेल्ट लिटिल बेटर विद द ऑफ रोड टुडे। मोरओवर, riding in proper daylight is always better. Anyway, my plan A is to cover Sach Pass and go back to Manali by tonight itself, which would be daunting and which is why I have started early. It will be a 160 kilometer of total off-roading for the day in terrains like this, followed by another 100 kilometer ride on the Himalayan highways. In case it does not look feasible as the day progresses, I would just stay back at Killar for the night and start for Manali tomorrow. Let's see. The altitude of Killar is around 8,500 feet, while that of Sach Pass is 14,500 feet. So, in a matter of bare 40 kilometers, this road climbs a massive 6,000 feet. It's not a joke. गाँव वाले सही बोले थे, असली पिक्चर स्टार्ट होती है किल्लर के बाद। Throughout the entire way, I have only climbed and quite sharp ascent at places. Watch this climb.
The road is not only insanely remote but also bumpier and narrower than yesterday. यहाँ पे कोई गलती से नीचे गिर भी जाता है तो शायद किसी को पता भी नहीं चलेगा. I'm stuck here. You can see the condition over here road, and I fell with my bike and my bike is now stuck. यहाँ पे ऐसे पत्थर है कि I cannot take it out of it, and there is no one around. I'm waiting for someone to arrive so that I can get some help. यहाँ थोड़ा पेट्रोल भी गिर गया है यहाँ से देख सकते हो. So I'm not sure what to do. फाइनली 30 मिनट वेट करने के बाद मुझे एक रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर मिला 1-1.5 किलोमीटर दूर. हैड ही नॉट हेल्ड आई डोंट नो हाउ लॉन्ग वुड हैव आई रिमेन स्टक देयर. वह टेरेन कुछ ऐसा था कि मेरे पीछे का टायर फंस गया था 2 बड़े बड़े पत्थर के बीच, और सामने भी एक के बाद एक ऐसा ही बड़ा बड़ा पत्थर था, ऑलमोस्ट लाइक स्टेयर्स. बाइक को बैक में लेना भी काफ़ी रिस्की था क्योंकि पीछे भी शार्प डाउनहिल था, और मैं अगर बाइक का वेट संभाल नहीं पाता तो हम दोनों 1000 फीट नीचे चिनाब में पाए जाते. आई मीन मैं और मेरा बाइक. इसलिए आई हैड टू वेट फॉर समवन टू पुश फ्रॉम द बैक टिल आई क्रॉस दैट इंसेंट पार्ट. सो फाइनली आई एम एट सच पास. यस आई डिड इट. और ये है सच पास का नज़ारा. रफ हिमालयन टेरेन्स ऑल अराउंड विद स्मॉल टेम्पल. The small temple is the only landmark of Sach Pass. Otherwise, it's quite tough to gauge the exact point. So why do people come to Sach Pass? ऐसा नहीं कि कुछ अलग दिखने को मिल जाएगा सच पास आके, but the feeling of conquering one of the deadliest road is completely different. I could feel it, and as a token of my emotion, I also put my signature in the wall. मेरे आने के 10 मिनट में और 2 बाइकर भी आके पहुंचे चंबा से, but otherwise there is hardly any living thing around this place. कोविड के चलते टूरिस्ट भी ऑलमोस्ट ज़ीरो है यहाँ पे. और हाँ, जाने से पहले मैंने मंदिर का दर्शन भी कर लिया. महादेव जी और काली माता का मंदिर है टॉप पे. मैं 8 बजे किला से स्टार्ट किया था और जब सच पास पहुँचा तब 11:30 बज रहा था. मतलब मुझे 3.5 घंटा लगा यहाँ चढ़ने में. होपफुली नीचे जाते वक्त टाइम कम लगेगा. एंड दस प्लान ए इज स्टिल ऑन. मनाली वापस जाना है कि नहीं वो किलर पहुँच के डिसाइड करूँगा. ऑल्दो अपेरेंटली राइडिंग डाउन साउंड्स इजियर, इन रियलिटी इट इज़ मच टफर. एट प्लेसेस वेयर देयर वर शार्प डाउनहिल the tire wasn't gripping into the road, and trust me, it wasn't really a good feeling. Besides all this, there would be a strong pull of gravity as well. This road certainly is a genuine test of anyone's riding skills. I have always maintained that riding downhill would always give you a better view and understanding of the terrain and the landscape. ऊपर चढ़ते टाइम वीडियोस में ज़्यादा कुछ पता नहीं चला था कितना स्टीप चढ़ाई है वगैरह, लेकिन अभी उतरते वक्त दिखाई दे रहा है क्या क्या डेडली पार्ट कवर करके जाना पड़ता है सच पास. मे बी दैट्स व्हाई पीपल लाइक अस आर क्रेजी अबाउट कॉन्करिंग इट. द टफर द चैलेंज, द बेटर द एडवेंचर इज. I reached Killar in 2.5 hours, and after having some light lunch, I started for Manali.
I knew if I can reach Udaipur before dark, then the rest is easy. Many would argue that I could have stayed back at Killer and start afresh for Manali the next morning. But उसमें शायद टशन नहीं मिलता अंदर की एड्रेनलिन को। और ऐसे एडवेंचर के लिए ही तो निकल पड़े हैं बाइक लेके अनजाने पहाड़ों के बीच। As they say, that the ship is safe at the harbor, but that's where it's exactly not meant to be. ये है वो नाला जहाँ कल रात को मैं फंस गया था। नाला का साइज इतना बड़ा है कि डे लाइट में भी क्रॉस करने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। और ब्रिज का तो आप देख ही रहे हो। It won't be unjustified if I say crossing this bridge and the Nala in pitch dark night was the most extreme adventure I did in this trip. कल मैं चलाया था 13 घंटा और आज शायद वो भी क्रॉस कर जाएगा। एंड ऑल दिस विदाउट प्रॉपर मील। एडवेंचर के चक्कर में केक और बिस्किट पे ही जी रहा हूँ कल से। होपफुली मनाली में होम स्टे पहुँच के कुछ अच्छा खाना मिल जाए। बट ओवरऑल आई एम हैप्पी विद दिस ट्रिप एंड सून आई विल बी रीचिंग उदयपुर बिफोर इट्स कम्प्लीटली डार्क। मिशन सक्सेसफुल। So finally I am here in Udaipur and it's around 6:15. 4 घंटे से थोड़ा कम समय लगा मुझे किलर से उदयपुर आने में। और अभी मैं निकलूँगा उदयपुर के लिए, अभी मैं निकलूँगा मनाली के लिए थोड़ा चाय के बाद। एक चाय ब्रेक तो बनता है इतना लंबा ऑफ रोडिंग के बाद। दिस हैज़ बीन एन हेक्टिक राइड सो फार। होपफुली यहाँ से तो रास्ता ठीक है, देखते हैं। सो दिस इज इट, अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टॉप ड्रीमिंग, स्टार्ट ट्रैवलिंग।